Hello plus one class students. So the name of the next chapter is classification of elements and periodicity in properties. Many topics of this chapter were covered in 10th class also, so I am going to explain briefly this topic. Like the first scientist who given the classification, who tried to do the classification was Duvernier. Duvernier was the scientist. He gave three triads. First triad was lithium, sodium, potassium. These three elements have the similar properties. And another triad was calcium, strontium, barium, and the other one is chlorine, bromine, iodine. So chlorine, bromine, iodine, these three elements have the similar properties. He given only three triads. The limitation of this classification was that he given only three triads. And what about the other elements which are there? So classification should be such that all the elements should be covered. So the main actually fact in this classification was the mean of the masses of first element and the third element. Mean of the masses of first element and third element was similar to the mass of the second element. This was the fact in these triads. So you can just these are not that much important, they are just introductions. You can just recall it as in 10th class I explained you. The next was the Newland law of octave. Newland scientist था जो, उसने भी कुछ अपना जो है क्लासिफिकेशन दी थी. So according to him, he classified the element lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. So first one, second one, third one, fourth one, fifth one, sixth one, seventh one, and the eighth one have the same property as the first. As the laws of octaves means जो स्वर होते हैं हमारे, तो पहला स्वर, दूसरा स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, जो सात ही स्वर हैं, और एट्थ जो फिर क्या आ जाता है, पहला ही आ जाता है. इन द सेम वे द फर्स्ट एलिमेंट up to seventh element, eighth element is sodium. It has similar property as the first element. This was the Newland law of octave. I explained you in the 10th class also, so no need to focus on this topic much. Just you know the introduction of this topic, that what was the Newland of law of octaves. And after this, Mendeleev model. After Duvernier and Newland, द मेंडलीव वॉज द साइंटिस्ट जिसने कि हमें क्या दी, क्लासिफिकेशन क्लैरिटी दी है. तो वो क्या था, अकॉर्डिंग टू हिज लॉ मेंडलीव, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. मींस जो प्रॉपर्टी हैं किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं, पीरियोडिक फंक्शन मींस वो डिपेंड करती हैं किस पे, एटॉमिक वेट पे. सो उन्होंने बोला उस किस हिसाब से अरेंज किए एलिमेंट्स. मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स अरेंज किए, जैसे हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, उसने भी अरेंज किए थे जो भी तब तक डिस्कवर्ड एलिमेंट थे. लेकिन वो किसके आधार पे किए, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट पैरामीटर ही अरेंज द डिफरेंट एलिमेंट. दैट पैरामीटर वाज एटॉमिक मास. ये आपने याद रखना, एटॉमिक वेट था उसका पैरामीटर. तो बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं जो अपने मेंडलीव क्लासिफिकेशन है. ही अचीव्ड अ लॉट, सो मैनी अचीवमेंट्स आर देयर, सम लिमिटेशंस आर आल्सो देयर. We already discussed these limitations and achievements in 10th class, but now I am just explaining few of these again. Like achievement was, he arranged the elements which was then known in periods and groups, but which elements were not known, which elements were not discovered at that time. For these elements he left the vacant spaces. He told at that time that after some time these elements may be discovered, and he also named these elements. Like if after aluminium this element occur, then he Eka aluminium, Eka sodium, like this. He even named these elements. He described their property also, that when these elements will be discovered, they will have this kind of properties. And one more achievement is there. At that time, noble gases were not discovered at that time. Noble gases were not discovered, and after his death the noble gases were discovered, but these noble gases had not any bad impact on this already described periodic table. Or you can say it these जो नई जो नोबल गैसेस थी उन्होंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया, पुराना मॉडल था जो हमारा.
जो मेंडलीव ने दिया था। सो मेंडलीव की काफ़ी अचीवमेंट्स थी, वेट के हिसाब से थी, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी थी मेंडलीव की। वो क्या थी लिमिटेशंस? कि मेंडलीव ने इनको वेट के हिसाब से किया, लेकिन कई हमारे पास आइसोटोप होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के हमारे पास आइसोटोप है, उसका मास कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है। किसी आइसोटोप का मास है वो 2 भी हो सकता है, किसी का 3 भी हो सकता है हाइड्रोजन के आइसोटोप का मास। तो उनको कैसे अरेंज करना, आइसोटोप्स को अरेंज करना मुश्किल था। सो ऐसे करके जो है हमारा जो ये डिफ़िकल्टी इसमें आई है। तो ये तो सारा जो है एक रिकॉल था, रिकैप्चुलेशन थी पिछली 10th क्लास की। दिस टॉपिक्स यू शुड नो समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, बट नाउ डेज इन फ्यूचर विच क्लासिफिकेशन यू विल फॉलो इज़ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द मॉडर्न क्लासिफिकेशन। ये आपने फॉलो करनी है। इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या है, किस आधार पे ये क्लासीफाई किया है, मेंडलीव से थोड़ा सा अलग है जो मॉडर्न है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, वो किसके बेस पे है? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स डिपेंड। जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट की, वो किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक मास पे नहीं करती। किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ये इसका है कि ये किस पे डिपेंड करती है प्रॉपर्टीज? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। ये अलग है, डिफरेंस है बिटवीन मेंडलीव एंड पीरियोडिक, मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू मेंडलीव डिपेंड अपॉन द एटॉमिक मास, बट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक नंबर। ये इसमें डिफरेंस है। तो ये हमारा जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है, ग्रुप्स, पीरियड्स अरेंज कर रखा है ग्रुप्स में, पीरियड में। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्लासिफिकेशन को, तो इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, देयर आर 18 सच वर्टिकल कॉलम्स। हाउ मैनी वर्टिकल कॉलम आर देयर? 18। यहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करके ये 18 कॉलम है वर्टिकल, ऊपर से नीचे जा रही हैं ये वर्टिकल कॉलम्स। ये कितने? 18 है। इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। सो वी हैव 18 ग्रुप्स एंड द हॉरिजॉन्टल रोज आर ऑल्सो देयर। जैसे यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल रोज है इधर, ऐसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ऐसे 7 हॉरिजॉन्टल रोज है। उनको हम क्या बोलते हैं? पीरियड्स। सो हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो इधर को, उसको पीरियड्स बोलते हैं। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंज किए गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट द टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। पहले क्या होता था कि जो साइंटिस्ट है, हु डिस्कवर्ड द एलिमेंट, ही नेम द एलिमेंट आफ्टर हिज नेम, आफ्टर हिज कंट्री नेम, एनी नेम दे कैन गिव दैट एलिमेंट। बट नाउडेज there is a rule that nowadays that any element suppose discovered, then the name should be according to some rules. You cannot give name to name after your name or your country. So this is there are some rules in which nomenclature of the elements with atomic number more than 100 is given. क्या है ये रूल? जरा देखो इसमें क्या है। जैसे हमारे पास एलिमेंट है 101, उसका एटॉमिक नंबर कितना? 101। तो उसका नाम कैसे लिखना? उन्होंने लिखा है कि कोई भी ज़ीरो अगर आ रही है उस नंबर में, एटॉमिक नंबर में, तो 0 को हम लिखेंगे नील, और 1 को लिखेंगे अन, और 2 को लिखेंगे बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्टेंड, 9 को एन। तो ये हमारा एक दिया है। तो यहाँ क्या है? 0 को नील है, 1 को अन है। 0 मतलब नील, 1 मतलब अन। तो यहाँ क्या है हमारे पास? 101। 1 को क्या लिखना हमने? अन, और 0 को क्या लिखना हमने? नील, और फिर क्या है उसके बाद? अन नील, फिर क्या आ गया? 1 ही है, उसके बाद फिर अन, अन नील अन, ये नेम आ गया। साथ में आपने IUM लगा देना, बस किसी भी IUM, अन नील अन नियम, अन नील अन नियम। तो ऐसे आपने नोमेनक्लेचर लिखना है। कभी आ जाए आपको एग्जाम में कि राइट द नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101। अब यहाँ से आ गया अगर 103, इसका नाम लिखना है, तो 1 को क्या बोलते हैं हम? अन, नील को क्या बोलते 0 को क्या बोलते हैं हम? नील,
और 3 को क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे देख सकते हो आप, 3 को क्या बोलते हैं हम, ट्राई। तो अन नील, उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, ट्राई, उसके बाद क्या आएगा, IUM, ट्राइयम। तो ऐसे अन नील ट्राइयम। सो दिस इज द वे हाउ टू राइट द nomenclature ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर मोर देन 100। सो ये एक तरीका हमारे पास, इन्होंने नाम लिखे हैं, यहाँ पे दे रखा है कि 102 है तो अन नील बाइयम ट्राइयम, तो पूरा ये नाम लिखे हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये जो पीरियोडिक टेबल है, इस पीरियोडिक टेबल में कुछ जो है S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको S ब्लॉक कहते हैं। ये D ब्लॉक एलिमेंट है, इधर D ब्लॉक कहते हैं। कुछ P ब्लॉक एलिमेंट है, इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या P ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे ये पहले 2 ग्रुप हैं, इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। जो पहले 2 ग्रुप हैं इनको हम S ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोलते हैं। अगर इनकी आप कोई भी एलिमेंट ले लो, मान लो सोडियम ले लो, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। सो इसकी कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। सो 2 2 4 6 10 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन s ऑर्बिटल। सो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन s subshell, therefore these two groups are called S block elements because in the configuration of all the elements the last electron enters in s orbital। और ये इनको D ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि इनमें D ऑर्बिटल में ऐड होते हैं। इनको P ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि इनमें P में ऐड हो जाता है। देख लो, चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो इसमें से, मान लो आपने कार्बन ले लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। सो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा, 2 2 + 2 + 2 6 हो जाएंगे, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो 1s2 2s2 2p 2। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द p orbital, therefore these all elements are called p block elements। so some are called S, some are called P, some D or some F, because in D block elements the last electron enters in D subshell in the configuration। so that's all for today।